आज झालं रे. हेलो ऑनलाइन फ्रेंड्स, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या ऑनलाइन फ्रेंड्स? Yes, sir. आ रहा है ना? चलो. So good evening. Yesterday I was occupied, so could not attend. But your lecture, somebody has taken your lecture, na? Time is not wasted. So Renu madam has taken the lecture. So okay, it's only an adjustment of lecture, and our syllabus is also in quite good shape. So almost we are starting on the last topic of the subject. One small element is also there, but we will it will not take much time to complete that topic also. Basic में है what is related to reconciliation, integrated account, and reconciliation between financial accounts and books cost accounts. So that is not very difficult, and basic things are very much cleared. Hence, I don't think it will be requiring so much of time that we spend on marginal costing, budgetary control, and methods of costing, and now the standard costing. So accordingly, I think today, or this is a topic, will be a last topic that we'll be covering. And we have ample of lectures. अभी भी 5-6 lectures है. आज का अगर करेंगे तो 2, 4, 5, 5 to 6 lectures are still there. So 3-4 lectures costing, standard costing will be completed, and 1 or 2 lectures that basic reconciliation between financial accounts and books cost accounts will be completing. With this, the syllabus will get fully completed. अगर एक आध lecture time मिलता है और कोई off lecture भी मिलता है मुझे, then we will take on the elements. अगर कोई एक आध दो problem solve करना बाकी है या concept clarity के लिए अगर कुछ करना है तो we will do that also. But that will happen if we have sufficient time, or at least one lecture, or we can go in the month of June 1st. एक lecture अगर करना चाहते हो तो हम लोग कर भी सकते हैं. It depends. It will completely depend on you. So with this, let's start the last topic, an important topic, that is standard costing and variance analysis. As I already told you, 3 topics are very important in costing. One is budgetary control, which we completed fully, in which we have seen multiple types of budget, right from sales budget, production budget, purchase budget, cost budget, overhead budget, very flexible budget, fixed budget, cash budget, budgeted P&L account, and master budget. All kind of budgets and budgetary problems we have solved. We are okay with that. Conceptually clear. Second topic which we said that is important is marginal costing, that we completed last time. Almost all problems were solved. एक या दो homework के लिए दिया था. I strongly believe you could have done that in a proper way. In marginal costing also, it's a decision making aspects, and in this group 1 में, it's only related to concept clarity, and those who have attended group 2, you know what depth level we have to go in the marginal costing in group 2 level. ठीक है. With that marginal costing also, multiple formulas we have seen, and with that we completed marginal costing, and now the last aspect which starts with the standard costing. These are the 3 important topics, along with the methods of costing, which will methods of costing and techniques of costing, which covers almost 60% of marks. And as per me, I strongly believe that we have given sufficient time and solved the problems, and concept clarity has been done in these 2 topics. What remains is basics. In basics also, we have given sufficient time for material, 3 cost heads, na? Material, labor, and overheads. In which material, labor, overheads, all these 3 topics were clear. Problems and everything is clear. If you people are repeating it again and again, and one concept I had given at the very starting of the start writing formulas at the last page of the book. With that 50-60 formulas might have been created by you, and topic wise it becomes easy to remember also. That will cover 60 plus 30%, 90% syllabus will get. Now 5 to 10% is remaining, that is reconciliation between financial books and cost books and integrated cost accounting system. So only that portion will remain. We will try to cover up in a lecture or 2
after completing standard costing. Okay. So what do you mean by standard? First of all, we are studying the standard and with standard costing and variance analysis. So first thing that we should be very clear in our mind what we are doing in standard costing. So अगर concept clarity करना है, if we want to clear the concept in a proper way, then first thing that we need to understand that what we are studying. जैसे हमने marginal costing में किया था, that is the tool for decision making, and this is also a tool for decision making, but it identifies where the problem is and how it should be approached, how it should be solved, right? So go in any organization, if you work in costing budgeting area, you will have to deal with these 2-3 topics: marginal costing, budgetary control, and standard costing. Method of costing, anyway, it will be part and parcel of our life. Now what do you mean by standard? So there can be n number of things. So you have started working in an organization where actual spend is given, actual spend or actual details, actual data is given. Now that data will be of income, right? That data will be of expenses, and that data will be of profit. So these 3 elements will always be there: profit and loss account or income and expenditure statement. So if there is an income of rupees 100 and there is expenses of rupees 80, so how much remains is the profit. I am just giving a simple element. So हमको profit हुआ 20 रुपये. Now this is actual. Now whether we are doing good or bad, from this statement will be able to identify? We don't know. Whether we are doing good or bad, we don't know, right? So we have to be, it has to be compared with something. If we do comparison may be of last year, right? Last year what was the data? Compare karo. It can be with budget, what was the budget and what is actual. It can be with standard. It can be with standard. It can be with other unit of same company. It can be with other competitor. If information is available, you can do this also, right? So it can be with strategy. Strategy might be having something different. It can be with strategy also. So this is the actual data. This is the actual data. If you compare it with either last year, either budget, either standard, either with other units data, either with competitor, or either with, you will get a variance. Variance means difference. You will get a variance. For example, your budget was 110. Expenses is 95. And you will get a profit of rupees 50. So there is a variance. So there is a variance. What is the variance? Your income has increased by 10 rupees. Your expenses has increased by 15 rupees. But your profit has reduced by 5 rupees. Now this has to be explained to the management why it has happened. Why it has happened. What are the reasons that your income has gone up? That there can be various reasons. Volume बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा. नहीं, volume ये reduction है. Budget was 110. Actual is 100. There has been reduction of 10 rupees. Income reduction हो गया 10 रुपये में. Expenses has reduced by 15 rupees. And profit has increased by 5 rupees compared with budget. These are budgeted numbers and the actual numbers are profit ज़्यादा आया है. There is no question of whether profit is high or less. नहीं तो बोलेंगे profit ज़्यादा है छोड़ दे, ऐसा नहीं. It has to be explained why it is high or why it is low, or why the income has increased, why the income has reduced, why the expenses has increased, why the expenses has reduced. What are the reasons for that? It is known as variance analysis.
It is known as variance analysis. Now when we do standard, when we say standard costing is nothing but the variance analysis. But where we are comparing, that will be the best. So basic understanding should be that standard costing application can be done with last year budget, standard costing unit, other unit, competitor standard. सबके साथ किसी के साथ भी कंपेयर करेगा तो variance आएगा, उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है. That is nothing but the standard costing and variance analysis. ऐसा नहीं कि हम लोगों को standard. So in examination, information can be of any level. इसमें से कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ element रह सकता है, और भी कुछ element जिसके साथ comparison होता है. Normally at intermediate level they do not disturb too much. आपका ज़्यादा तकलीफ देते नहीं. So whatever information is given, with that you have to compare and derive the element of variances. Understood? Now when we say budget, we are very clear how the budgets are being prepared. So budget के साथ actual compare करेंगे, उसका variance आएगा, matter close. But now we are saying that we will be doing variance analysis with standard versus actual. Now what is standard? Standard by applying various studies, motion study, time study, जितने भी एक्सपीरियंस है, efficiency studies, सब एक्सपीरियंस के हिसाब से एप्लीकेशन करके एक डिसाइड होता है कि दिस शुड बी माय. मार्केट स्टडी भी होता है, इनकम के लिए मार्केट स्टडी भी होता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपन्स, रिपोर्ट्स आर जनरेटेड एंड देन दे सेड दैट आई वांट टू नेक्स्ट ईयर आई वांट टू my standard income should be 120 rupees. My standard income will be 120 rupees. Now for this 120 rupees, expenses will be 90 rupees. So I should get a profit of rupees 30. This was the standard which was set. Now what has happened in actual? 100, 80 and 20 profit hai. So there has been reduction in income. Simultaneously there is reduction in expenses and reduction in profit also. We have to explain this. We have to explain what are the reasons for this increase or decrease in income, expenses and profit, which is there in detail at group 2 level. Group 2 level में पूरा है, sales variance भी है, profit variance भी है, expense variance भी है. But at intermediate group 1 stage, we have only expenditure variance, expense variance. Now, अभी इसको मैं तोड़ता हूँ, टुकड़ों में बांटता हूँ. Understood this basic element? Concept clarity करना है. हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, that is different story. Don't get bogged in the standard costing like I will solve 100 problems or 120 problems. आप 200 problem भी solve करोगे standard costing में. But if you go without concept clarity, there will in examination hall there is a probability of one new problem which will come and you will say that यार मैंने ये देखा ही नहीं था. So solve 10 to 15 problems with proper concept, with proper concepts, and then whatever problem comes. Standard costing ऐसा है कि एक बार 10-15 problem में अच्छी तरह से explain understand हो गया और 2-4-10-15 problem additionally आपने solve कर दिया, खत्म. Lifetime का standard costing का problem खत्म हो जाएगा. Only thing is that we have to identify what is actual in from problem, what is the comparative data. It can be budget, let me tell you, it can be budget, standard, last year actual, competitor, कुछ भी हो सकता है आपको confuse करने के लिए. Don't get confused. It remains the same, formula remains the same. Either last year का भी दिया तो भी formula same तरीके से apply करने वाला हो, budget भी दिया तो same तरीके से, standard भी दिया तो same तरीके से. Whatever, it's a just comparison of two sets of data. So formula में कुछ change नहीं करना है. Either it is standard, budget, actual, last year, competitor, whatever. Formula remains the same. Okay? That is first concept clarity. और दोनों भी दिया है, standard भी दिया है और budget भी दिया है. तो किसके साथ compare करना है? Standard के साथ. Actual तो obviously actual ही रहने वाला है. Actually के साथ ही compare करना है. One set is fixed, actual. Another set, standard भी दिया है, budget भी दिया है. तो question properly read करो. In question what they have given. Do the variance with respect to budget दिया है और do variance analysis with respect to standard दिया है. अगर budget भी है और standard भी है, क्वेश्चन में बताया है कि do variance analysis with respect to budgeted information. So we have to select only actual and budget.
If they give standard के साथ, तो actual and standard. If they don't say anything, go by standard. Go by standard and write a note. Variance analysis is derived with respect to standard. Done. और अगर एक ही सेट है तो कोई इश्यू नहीं है. नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंफ्यूजन है ये टॉपिक्स में. सो दे लिटिल बिट प्रोटेक्ट ग्रुप 1 लेवल. ग्रुप 2 लेवल पे मे बी दे मे नॉट प्रोटेक्ट. थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या बहुत सारा मसाला डाल सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू आस्क मी हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एप्लीकेशन करने जाएगा तो ऑलमोस्ट 25 to 30 फार्मूला जनरेट हो जाएगा. 25 हमने देखा भी है, पर 25 to 30 फार्मूलाज कैसे होते हैं लेट अस अंडरस्टँड ना. वो लाईट बंद करू नका बरं का, चांगलं चाललंय, चालू द्या आता. ओके, कहाँ पे थे हम लोग? The number of formulae. हाँ Number of formulae. हाँ, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज पे थे. ठीक है. नाउ इनकम ये फॉर्मूला है ही नहीं, एंड नाइदर वी हैव दिस एलिमेंट. नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑन व्हाट इज देयर इन सिलेबस. पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में चलते हैं. ग्रुप 2 में हमने काफ़ी डेप्थ लेवल पे स्टडी किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कोई इशू नहीं. बट जिन्होंने डायरेक्ट ग्रुप 1 पे है, दोज हु आर फ्रेश इन ग्रुप 1, बी हैप्पी. वी हैव टू डील मोस्टली ऑन एक्सपेंस वैरिएंस. नाउ व्हेन वी से एक्सपेंसेस, व्हाट आर द 3 एलिमेंट ऑफ एक्सपेंसेस? कौन से 3 एलिमेंट ऑफ एक्सपेंसेस? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. Material, labor and overhead. So this 10 rupees which is variance, standard was 90, actual is 80. So your cost, your saved cost और कम खर्चा किया है, 10 रुपये कम लगा है. ये 10 रुपये एक्सप्लेन करना है अपने को. Now why this 10 rupees is less? मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, 100. Why this you have spent extra 10 rupees extra? So it becomes psychologically easy to understand also. 10 रुपये ज़्यादा खर्चा किया, कम किया तो कोई ज़्यादा पूछते नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मैनेजमेंट हैज़ टू बी एक्सप्लेन बोथ द वेज. इफ एक्सपेंस इज लेस, वाई लेस? इफ मोर, वाई मोर? सो वी हैव टू एक्सप्लेन बोथ एंड दैट इज लॉजिकल. एंड दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग गिव्स द टूल टू एक्सप्लेन बोथ द वेज ऑल्सो, नॉट एन इशू. नाउ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. कॉस्ट इसके आगे कुछ है क्या? नेचर ऑफ एक्सपेंसेस से जाएंगे तो यही 3 है. फिर उसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये सब चीज़ों में बाद में जाएंगे हम ग्रुप 2 में. ग्रुप 1 में दिस 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड. नाउ व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर इंक्रीज इन दिस कॉस्ट? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? एक तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा. यहाँ पे हमने प्रोडक्शन की बात की थी 500 यूनिट्स की. यहाँ पे 550 यूनिट बनाए होंगे. ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा लगेगा. सो वॉल्यूम का इम्पैक्ट रहेगा, वॉल्यूम वेरिएंस आएगा. फिर मटेरियल में वॉल्यूम वेरिएंस विल कम इन लेबर ऑल्सो. वॉल्यूम वेरिएंस विल कम इन, वॉल्यूम वेरिएंस बोलो उसको, क्वांटिटी वेरिएंस बोलो. क्वांटिटी वेरिएंस, तीनों वेरिएंस है. क्वांटिटी, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी बढ़ गए ना, कम क्वांटिटी नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि 450 क्वांटिटी, कम प्रोडक्शन करने के बावजूद तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है. वट एवर सिचुएशन में भी, नॉट एन इशू. सो डोंट गेट कि ऐसा ही कम ज़्यादा प्रोडक्शन किया इसलिए खर्चा. इट कैन बी एनीथिंग. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? एक तो क्वांटिटी चेंज है, दूसरा प्राइस यूनिट पर, प्राइस पर यूनिट, सॉरी, रेट ऑफ मटेरियल, रेट प्राइस. जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था तब मेरा रेट था 2 रुपये पर केजी. एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो 2 रुपये 10 हो गया, या 1 रुपये 90 पैसे हो गए. सो देयर हैज बीन चेंज इन क्वांटिटी, देयर हैज बीन चेंज इन रेट. नाउ रेट चेंज कैन हैपन इन
मटेरियल लेबर ओवरहेड इन ऑल द 3 एरियाज. एग्रीड? हो सकता है की नाही? तुम्हाला घरच्यांनी 1000 रुपये खर्च करायला दिले आणि तुम्ही 1100 रुपये खर्च केले, तर यू हॅव टू एक्सप्लेन 100 रुपीज वेर यू स्पेंड एक्स्ट्रा. बरोबर ना? कपडे घ्यायला गेला असेल, 500 रुपयाचे कपडे 600 रुपयात घेतले, 2 शर्टचे ऐवजी 3 टी शर्ट घेतले. क्वांटिटी वरायंस इज देयर, रेट वरायंस इज देयर, राइट? सो 100 रुपीज जो तुमने एक्स्ट्रा खर्चे किए उसका रीजन इधर क्वांटिटी है या रेट है. तीसरा है मिक्स वरायंस. नाउ व्हाट डू मीन बाय मिक्स वरायंस? इफ देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच इज बीन मैन्युफैक्चर्ड, सो ए बी सी 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो ये आपका डिसाइड था 500 का मैन्युफैक्चरिंग करना था. स्टैंडर्ड वाज 500 टू बी मैन्युफैक्चर्ड. बराबर? 500 क्वांटिटी, इसके 100, इसके 200 और इसके 200. ना एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअली इसको 150 बना दिए, इसके 250 बना दिए, इसके 100 बन गए. सो मिक्स चेंज हो गया, मिक्स कॉम्बिनेशन चेंज होगा ना. सो मिक्स चेंज होगा तो मटेरियल का भी मिक्स चेंज हो जाएगा. यस और नो? बराबर कि नहीं? हाँ या ना? आवाज स्ट्रांग रहो. ये कॉन्सेप्ट है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, फॉर्मूला में कैसे जाना है, कैसे एप्लीकेशन करना, वी विल डू दैट. इट्स एप्लीकेशन ऑफ ओनली फॉर्मूला, नथिंग अदर देन. बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. व्हाट वी आर डूइंग, वंस वी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ना, लेट द प्रॉब्लम कम एनी हाउ. फॉर्मूला का मैं लॉजिक बताऊंगा, आप लोगों को मालूम है लॉजिक इज वेरी इजी टू मेमोराइज फॉर्मूलाज ऑल्सो. 4 फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे, पूरे 40-25 फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे. नथिंग डिफिकल्ट इन टू दिस, राइट? नाउ मिक्स की वजह से भी इम्पैक्ट आएगा. एंड वन मोर इज यील्ड वरायंस, इसका कॉम्बिनेशन कॉस्ट वरायंस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो ऐसा करके देखो हमारे कितने फॉर्मूला यहाँ पे 12, एक्सपेंसेस में 12, इनकम में 12, प्रॉफिट में 12, 12, 24, 36, 30 फार्मूला, 30-35 फार्मूला तो आराम से बन जाता है. ठीक है? बट नाउ द गुड पार्ट इज दैट इन ग्रुप 1 वी हैव ओनली मटेरियल एंड लेबर. ओवरहेड भी नहीं है ना? आई थिंक सो. ओवरहेड से क्या? ओवरहेड्स वरायंस, आई डोंट थिंक ओवरहेड वरायंस इज देयर. So very small portion of standard costing we will be dealing. Material variance, labor variance, दो ही variance है. Overheads भी रहेगा तो ठीक है, we will deal with that also. But sales variance नहीं है, profit variance नहीं है, all that is in group 2. ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, ग्रुप 2 करके ग्रुप 1 करेंगे तो ग्रुप 1 इज नथिंग. लेकिन डायरेक्टली ग्रुप 2 के लिए जाते तो फांसी पे लटकाया जैसा लगता है. ये क्या इतना भयानक है ये? ठीक है? सो ग्रुप 1 करके ग्रुप 2 जाएंगे तो बेटर ऑफ है. ग्रुप 2 करके ग्रुप 1 कर में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ग्रुप 1 बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल्सो, फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. आप लोगों को तो कुछ लगा ही नहीं हो ना, और इवन फॉर बजटरी कंट्रोल ऑल्सो. ठीक है? Understood? Now what we are doing, we are finding out the reason for increase or decrease in cost with respect to standard that was set. It is nothing but variance analysis. Understood? क्या करना है वो समझ में आ गया? ठीक है. And it will help us to improve the efficiency of the organization. कंट्रोल करना है, किसको रिस्पॉन्सिबल करना है? See, now quantity ज़्यादा लग गया होगा. There might be n number of reasons why quantity has been consumed more. ऐसा सिचुएशन हो सकता है. ये हमने बजट भी 150 का किया था, स्टैंडर्ड भी 500 का था और एक्चुअल भी 500 है. सो देयर शुड नॉट बी मटेरियल का वैरिएंस नहीं आना चाहिए, क्वांटिटी एटलीस्ट. बट ऐसा हो सकता है ना, कुछ नया मशीनरी आएगा, प्रोसेस का लॉस बढ़ गया होगा, या मशीनरी ओल्ड बन चुका होगा, या हमारा स्टैंडर्ड सेट करते समय कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा. दैट विल कम. वर्ल्ड इज नॉट प्योरली परफेक्ट. परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं काम करते हम लोग. सो देयर विल बी डिविएशन, एंड दैट डिविएशन किस रीजन की वजह से आ सकता है? फिर वो
which person should be made responsible for this element. अकाउंटेबिलिटी आ जाता है. प्राइस अगर बढ़ गया, रेट बढ़ गया मटेरियल का रेट जब बजटिंग किया तो 2 रुपया था, एक्चुअल में 2 रुपया 10 पैसे. सो परचेस मैनेजर शुड एक्सप्लेन व्हाई इट हैज गॉन अप. ऑब्वियसली द हेड ऑफ दैट कंपनी विल आस्क द क्वेश्चन टू परचेस मैनेजर, व्हाट वर यू डूइंग इन बजटिंग. बजटिंग और स्टैंडर्ड सेट करते समय तुमने 2 रुपया डिसाइड किया था, 2 रुपया 10 हो गया. Why the 10 paisa has been increased? He has to explain. There might be n number of reasons for that. That is different story. Finance or accountant's job is to show the picture. This is what has happened. Because of price, my cost has increased by 10 rupees. मेरा काम done. Now that 10 rupees वो price है कौन purchase manager, he has to tell the what are the reasons why 10 rupees has. There might be change in custom duty. There might be टैक्सेशन का चेंजेस हो गया, फ्रेट का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, फ्यूल के रेट बढ़ गए होंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स ही विल हैव हिज ओन रीजंस टू टेल. बट व्हाट इज योर रोल? टू टेल दैट द प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस माय कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय सो एंड सो, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी माय कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय सो एंड सो. नाउ क्वांटिटी, प्रोडक्शन हैज टू गिव द आंसर व्हाई द क्वांटिटी हैज इंक्रीज. वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ होगा तो वॉल्यूम के हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, नो प्रॉब्लम. बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, वॉल्यूम इज स्टैग्नेंट, जितना स्टैंडर्ड था उतना ही एक्चुअली. देन व्हाई मटेरियल हैज बीन, तो रिजेक्शन हुआ है क्या, पिल्फरेज हुआ है क्या, वेस्टेज हुआ है क्या? ऑल दीज थिंग्स ही हैज टू आंसर द मैनेजमेंट, he has to answer the queries to the finance people. What are the reasons why there has been more consumption of material and so on and so forth. Same thing epilepsy, one material understand होगा तो same applies to labor also, same applies to overhead also. Overheads in fixed nature, in variable nature and all those things. So मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एक बार आपको material variance समझ में आ गया, application of that becomes easy for labor, application of that becomes for sales also. income के side में भी application करना पड़ता है, ठीक है? Understood what we are doing in standard costing? ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत कम लोग हैं आज, अटेंडेंस आज दिन ब दिन इतना कम होता जा रहा है. ऑनलाइन फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? सी फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन पिक्चर. ओवर अ पीरियड वी विल अंडरस्टैंड दैट. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. हम कर क्या रहे हैं? देयर आर 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन which we have to compare and find out the reasons why there has been change or why there has been variance in these 2 sets of the data. आउटपुट का इम्पैक्ट होगा ना, जाएंगे यील्ड में, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डिटेल. इसका इम्पैक्ट अभी छोड़ो, ये सब चीज़ों में जब हम लोग एक्चुअल में जाएंगे तो एक एक एलिमेंट को पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. डन? The standard cost serves the basic cost control of a measure productivity efficiency when ultimately posted with actual cost. It provides management with the medium by which effectiveness of current result is measured with the responsibility for deviation is placed. Responsibility बोलना है, तू परचेस मैनेजर है, तू बता वाई प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, तो डिक्रीज का भी तो रीजन मानना चाहिए. डिक्रीज है तो क्या रीजन है, नॉट ओनली इंक्रीज. Standard costing is management accounting technique that is used to determine the expected cost of producing the goods or services. So पहले तो हम लोग पहले तो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बराबर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे. नाउ स्टैंडर्ड कैन बी स्टैंडर्ड that can be last year actual, that can be budget next year budgeted also, that can be my competitors data also if available. normally रहता नहीं, availability इतना डिटेल में नहीं रहता है, but yes it can be next. अब मेरा यूनिट का डेटा हो सकता है, whatsoever it may be, वो सब किसी के साथ भी अप्लाई बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, बेंचमार्किंग, इंजीनियरिंग एस्टिमेट्स एंड ऑल्सो एंड सो फोर्थ. सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग.
थ्योरी रीड कर लेना है भाई लोग, अब थ्योरी प्रॉपरली रीड करना, सब चीज का each and every topics theory you have to read twice after completion of topic. See, standard costing is a cost accounting method technique, actually method नहीं, cost accounting technique widely used in various industry including Indian industry for several practical purpose. almost सारे industry में इसका use होता है, सब जगह पे. Variance analysis, just now we completed simple example. Now see, variance analysis में क्या starting point कहाँ पे, profit, operating profit variance. Now profit में क्या दो चीजें आ सकते हैं, it might be profit is impacted by two ways, either by income or by expenses. मेरा profit, I had decided profit of rupees 100, now the profit is 110 or 90. Why this is 90 or why this is 110? It might have two impact. One, either cost has reduced or cost has increased, or income has reduced or income has increased. These are the two. So cost variance and sales variance, income variance. Now in cost variance, we know there are three heads of cost by nature of expenses: material, labor and overheads. ओवरहेड्स को दो भाग में, टुकड़ों में बांटा है, एक्चुअली जरूरत नहीं, तो ओवरहेड वैरिएंस एंड देन उसके नीचे दो, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस. अंडरस्टूड? नाउ दिस डायरेक्ट लेबर वैरिएंस, उसको दो तरीके से करते हैं. रेट वैरिएंस, रेट बढ़ गए होंगे. लेबर, जब व्हेन आई सेट द स्टैंडर्ड इट वाज रुपीज 135 रुपीज पर आवर रेट ऑफ लेबर. इन एक्चुअल it come to 120 rupees per hour. So favorable है. कॉस्ट कम हो गया तो फेवरेबल है. सी, कॉस्ट के एंगल से अगर देखेंगे, कॉस्ट कम हो गया तो फेवरेबल, कॉस्ट बढ़ गया तो एडवर्स. सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है. कॉस्ट कम हो गया तो फेवरेबल, कॉस्ट बढ़ गया तो एडवर्स. इन केस ऑफ इनकम, इनकम बढ़ गया तो फेवरेबल, इनकम कम होगा तो एडवर्स. यू हैव टू जस्ट ऑपोजिट साइड अप्लाई करना है. बट ग्रुप 1 में वी डोंट हैव इनकम वैरिएंस, सेल्स वैरिएंस नहीं, नाइदर प्रॉफिट वैरिएंस है. सो इट्स वेरी इजी, ओनली मटेरियल एंड लेबर वैरिएंस है. इसको एक ही चीज़ देखना है. कोई भी चीज़ है, अगर आपको 100 रुपये खर्चे करने के लिए दिया, आपने 90 रुपये खर्चे कर दिया, देयर इज अ फेवरेबल वैरिएंस ऑफ ₹10, बच गए 10 रुपये. अब उसका रीज़न देना है, लेकिन फिर भी 10 रुपये क्यों बच गए, और 10 रुपये बढ़ सकते हैं, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं फेवरेबल वैरिएंस एंड एडवर्स वैरिएंस. सिंपल, कॉस्ट, इफ कॉस्ट इज हायर देन व्हाट आई सेट इट इज एडवर्स वैरिएंस. इफ इट कॉस्ट इज लेस देन व्हाट आई सेट इट इज फेवरेबल वैरिएंस. डन. लेबर, जैसे इसको क्वांटिटी वैरिएंस बोलते हैं मटेरियल में, लेबर के केस में इफिशिएंसी, नाम बदल जाता है, इफिशिएंसी वैरिएंस. सो प्राइस वैरिएंस एंड यूसेज वैरिएंस, उसको प्राइस वैरिएंस, क्वांटिटी वैरिएंस, सी नाम अलग अलग है, डोंट वरी. कोई बोलते हैं रेट वैरिएंस, कोई बोलते हैं प्राइस वैरिएंस, कोई बोलते हैं यूसेज वैरिएंस, कोई बोलते हैं क्वांटिटी वैरिएंस. डोंट वरी, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करना है. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड वंस एक क्या बोलते हैं, फॉर्मूला सेट कर दो दिमाग में, कैसा भी प्रॉब्लम आए उस ढांचे में बिठाने का, सॉल्व करना है. ठीक है. ओवरहेड्स आल्सो एक्सपेंसेस एंड इफिशिएंसी वैरिएंसेस, efficiency and volume variances. Sales में भी price variances and quantity variance, mix variance and volume variance, yield variance. ठीक है. Now let us understand. ये favorable तो already I told you. I am again repeating. मेरा खर्चे कम हो गए, मैंने 100 रुपये एक्सपेक्टेड था मेरा खर्चा होना, 90 हो गए, तो 10 रुपये क्या है, फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल है. 110 रुपये खर्चे हो गए तो एडवर्स हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो फॉर्मूला में कैसे निकालना है वो तो करेंगे ही करेंगे, बट साथ में वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई इट इज फेवरेबल एंड व्हाई इट इज एडवर्स. क्लियर? सिंपल. और कोई लॉजिक अप्लाई करना है किसी का? सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग सिस्टम वेर यू सिलेक्ट द बुक, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट, बट आंसर विल बी सेम. 4 बुक रेफर करो, चारों बुक का आंसर सेम आएगा, बट logic applied might be different. So don't get distracted by number of things and number of books and all those things.
हमको 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना है बस, और वो 10 प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है. और इफ वी नो इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, what we are trying to do, I am repeating it again, if we know what we are trying to do from the given situation, things become very easy to apply also. Just try to just keep in mind there are two sets of information which we have to compare and tell whether ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है और क्या रीज़न है इसके पीछे, क्वांटिटी की वजह से, रेट की वजह से, मिक्स की वजह से, यील्ड की वजह से. And while solving problem itself we can tell ourselves that whether our answer is right or wrong. वो भी थोड़ी बहुत केस में रिजॉल्व आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं खुद को. डन, पक्का, अंडरस्टूड. ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी टिल हियर? ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी टिल हियर? Understood, sir. Now let's go in detail of material cost variance. Once we understand these things becomes very easy for exam. Now material cost variance, ये सब चीज़ें हम लोग अभी लेबर पे छोड़ देते हैं. एक्चुअल, स्टैंडर्ड, मिक्स, एक्सपेंसेस, material cost. Material. I was saying that I will be manufacturing standard quantity 500, एक्चुअल में भी 500 हो गए. मटेरियल का खर्चा जो था, मटेरियल स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था 1,00,000 रुपया खर्चा होगा, बट इन एक्चुअल द एक्सपेंडिचर इज 1,15,000. So there is a variance, standard minus actual, there is a variance. Now tell me, this variance is adverse or favorable? This variance is adverse or favorable? Why adverse? Because it is negative sign. Because it is negative sign adverse है. मैं ऐसे इसको कन्वर्ट ऐसे भी कर सकता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? But one thing we have to keep in mind, always do with budget versus actual. So things, देखो कुछ चीज़ें जहन में ऐसा होना चाहिए कि फिक्स मेरा सेट 70% डेटा कॉन्सेप्ट सेट है, उसको मैं ऐसा ही करूँगा सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होने वाला. सो इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड? माइनस एक्चुअल. नाउ दिस 15,000 rupees is the variance which we have to explain. Now this variance is what? Adverse variance. Why adverse? बिकॉज मैंने सोचा था 1,00,000 रुपया खर्चा करूंगा, लेकिन मैंने खर्चा किया 1,15,000. सो योर एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज बाय 15,000. नाउ सिंस योर एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज बाय 15,000, डेफिनेटली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी. ये सब चीज़ें आगे है, लेकिन हम लोगों को अभी ओनली दिस एलिमेंट, एक एलिमेंट को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, राइट? नाउ दिस 15,000 इंक्रीज, why there is been increase? So there can be various reasons. एक तो यूसेज variance, क्वांटिटी variance बोलते हैं उसको, कंजम्पशन variance बोलते हैं, मटेरियल कंजम्पशन variance, मटेरियल क्वांटिटी variance, मटेरियल प्राइस variance और रेट variance, मटेरियल प्राइस variance और रेट variance. See, the main objective is to find out the difference between standard cost of material used for actual production and the actual cost of material used. Thus, the main variance in this category of material is cost variance, which is thereafter categorized into. So majorly पहले तो हमको 15,000 को आइडेंटिफाई करना है, 15,000 को एक्सप्लेन करना है. Now this can be further categorized into material cost variance and material price variance. CMA official term defines direct material total variance as measurement of difference between standard material cost of output produce and ये कितना भी रीड किया ना तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट कॉन्सेप्चुअली समझ लो, खत्म. नाउ दिस मटेरियल कैन बी, देखो मटेरियल कैन बी फर्दर, आई कैन से डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड ऑल दोज थिंग्स. सो सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. अपने को कुछ स्पेसिफिकली मटेरियल मतलब एक ही मटेरियल डायरेक्टली रहेगा क्या, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अप्लाइड. इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
and understanding what we are doing. मटेरियल, कल उठ के कोई बोल सकता है ये मटेरियल, इसको मैं जस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोलता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. मटेरियल, मटेरियल को मैं यहाँ पे जो के बोल दूंगा आपको क्या, स्टील, स्टील कॉइल. क्या फर्क पड़ने वाला है? वुड. क्या फर्क पड़ने वाला है? मटेरियल. सो concept is important. So material, when we say material, it can be any material. If there are 10 materials, अलग अलग A B C D अलग अलग हो सकते हैं material A B C D. So once one by one element understanding is important. मोबाइल बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है? सर न, मोबाइल को छोड़ो, हम लोग बाइक बनाते हैं. बाइक, एक बाइक बनाने के लिए क्या क्या लगता है? हाँ बोलो. 2 टायर्स, हाँ इंजन, एक इंजन, हाँ 4 इंडिकेटर्स, 1 साइलेंसर. नहीं बोलो बोलो, ये तो स्टैंडर्ड है ना. दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड. और क्या लगने वाला है? Brakes. फ्यूल टैंक, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाइनर, ब्रेक. ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 800 तो 1000 पार्ट्स तो बन जाएंगे बिल ऑफ मटेरियल में. 800. इंजन को एक ही पकड़ा है, इंजन में कितने पार्ट्स रहते हैं? ठीक है. नाउ दिस इज स्टैंडर्ड. एक बाइक बनाने के लिए सो हम लोग बोलेंगे 2 टायर कंज्यूम हो जाएंगे, एक इंजन कंज्यूम हो जाएगा, 4 इंडिकेटर जाएंगे, एक साइलेंसर जाएगा, एक सीट जाएगा, 2 हेडलैम्प, 2 टेल लैम्प, 1 फ्यूल टैंक, 1 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्रेक लाइनर, एक ब्रेक लाइनर, एक चलो इसको एक ही बोल देते, ब्रेक लाइनर. एन नंबर ऑफ थिंग्स ऐसा है. ये स्टैंडर्ड है. नाउ एक्चुअल कैन बी डिफरेंट, होना नहीं चाहिए मेजरली इन दिस एरिया, बट हो सकता है ना, कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, कुछ एनीथिंग कैन हैपन. सो दिस 15,000 कैन बी बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी. एग्रीड? एग्रीड और नॉट? और कैन बी बिकॉज ऑफ दिस रेट ऑल्सो. रेट, टायर का रेट कितना था? 500 रुपये पर टायर. इंजन का 30,000 रुपये पर इंजन. इंडिकेटर 400 रुपये पर इंडिकेटर. साइलेंसर 1000 रुपये पर साइलेंसर. दिस वॉज स्टैंडर्ड रेट. राइट? नाउ एक्चुअल कैन बी डिफरेंट. एक्चुअल कैन बी डिफरेंट. ऑब्वियसली इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो वो इम्पैक्ट आएगा. बट रेट डेफिनेटली दिस बिकम्स 105, दिस बिकम 29,000, this remains 400, this becomes 950, सीट 600 रुपये का 700 रुपये हो गया. Now there is variance, this standard minus actual. ये रेट वराइंस आ गया. सो ये क्वांटिटी मानो, अगर ये क्वांटिटी भी इस 2 टायर के बदले में 3 टायर कंज्यूम हो गए, एक इंजन, 5 इंडिकेटर लग गए, एक ही साइलेंसर. लग नहीं सकते, लेकिन खराब हो गया ना, प्रोडक्शन लाइन पे खराब हो गया, रिजेक्शन हो गया, प्रोसेस लॉस हो गया. हो सकता कंजम्पशन तो बुकिंग करना पड़ेगा ना उनको, कहाँ पे जाएगा वो. सो क्वांटिटी वराइंस. ये मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल लिया है. डोंट टेक इट एज इट इज के ऐसा नहीं जाना है अपने को, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट. भावना समजायचं तुम्हाला की काय होऊ शकतं. यू जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ, चलो फ्यूल का लेते. फ्यूल का कितना है? फ्यूल में कितना, एक गाड़ी में डालते समय फ्यूल डाल दिया 2 लीटर प्रोडक्शन के वक्त. स्टैंडर्ड 2 लीटर है, एक्चुअल ज़्यादा भी जा सकता है. पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा डाल दो फिर से. दैट कैन हैपन ना.
Okay. Now this material quantity variance, material price variance, रेट की वजह से variance हो सकता है. Okay. Now there will be material mix variance. Material mix variance. चलो let us understand now one by one. एक तो पहले cost variance हमने find out किया, standard minus actual cost variance आ गया, उसके टुकड़े में अभी चलते हैं. Material price variance. This variance arises due to price of direct material and as such due to external factor that may be referred as uncontrollable. गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया इंपोर्ट पे. सो मैं कल जो मटेरियल लाया बजटिंग किया था या स्टैंडर्ड सेट किया था उसमें कस्टम ड्यूटी 10% का था. कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, बराबर ना. बेसिक कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो 10% था कल तक. इसलिए मेरा मटेरियल कॉस्ट वॉज 1000 रुपीज़. गवर्नमेंट अर्ली मॉर्निंग उठ के बोल दिया कस्टम ड्यूटी अपने नाम नहीं लेना, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, 20% कर दिया. So your material cost will go up, yes or no? There will be the reasons for that. ठीक है. So price has increased. नहीं तो कोई अदर कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ गए होंगे. सप्लायर के पास जो मटेरियल यूज बनाता है उसके कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए होंगे. Any reason can be there for increase in material price. Price is change. Understood? बजटिंग कर सिंपल है. बजटिंग या स्टैंडर्ड सेट करते समय 10 रुपये था, एक्चुअल में 12 रुपये लग गए, 2 रुपये ज़्यादा लग गए ना. उसका रीजंस फाइंड आउट करना. हमारा काम उतना ही है, 2 रुपये प्राइस की वजह से इम्पैक्ट है. वो प्राइस क्यों हो गया, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑन द परचेस मैनेजर. आप बोलेंगे आपको उसमें हमको भी करना है क्या? यस, यू विल हैव टू बी पार्टी टू दैट, नो डाउट, बट you will have to ask the proper reasons why 2 रुपया increase हो गया है. Done? Material usage variance, quantity. The variance arises due to internal factor of using material more than what is stipulated to be purpose. ठीक है. अभी एक एग्जांपल लेते हैं. मोबाइल बना, आपके हाथ में मोबाइल है. मोबाइल का बॉडी बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लग सकता है? फॉर एग्जांपल 50 ग्राम प्लास्टिक लगता है, 50 ग्राम पर मोबाइल. नाउ ड्यू टू प्रोसेस चेंज और न्यू मशीनरी या कुछ तो फेलियर या समथिंग हैज हैपेंड, 60 ग्राम मटेरियल लगना शुरू हो गया. सो वैरिएंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया. इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड व्हाई देयर हैज बीन इंक्रीज. नहीं तो ओल्ड मशीनरी के बेसिस में स्टैंडर्ड 50 किया था, नया मशीनरी लेके आ गए, वो 40 में करने लग गया. सो प्रोसेस लॉस कम हो गए, वेस्टेजेस कम हो गए. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, डोंट टेक इट एज इट इज. इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द वंस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ये सिंपल एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ प्रॉपर वे. ठीक है. This is as such controllable variance. For investigating the reasons of internal deviation usage of direct material, variance is subdivided into 2. Material का variance 2 इसमें. Mix change हो गया होगा. Mix हम लोग 1-2 material quantity input use कर सकते हो. Yield is output. Mix is input, yield is output. This variance arises actual mix of material used. Given that 2 or more material is used. जब एक ही मटेरियल यूज होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा मटेरियल अगर यूज होता है तो यू गेट द मिक्स वैरिएंस आल्सो. एंड यील्ड इज नथिंग बट द आउटपुट. आपने जो पूछा था, इफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम अनअवॉइडेबल लॉसेस टेक प्लेस, यील्ड इज नथिंग बट द आउटपुट. आउटपुट में अगर कम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल लॉसेस, द नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. Yield variance arises when actual loss is more than the normal loss. So मैंने देखा था कि 10% will be normal loss. हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टडी किया है, 10% हमने नॉर्मल लॉस डिसाइड कर लिया है, बट एक्चुअल में नॉर्मल लॉस इज 12%. तो यील्ड में इम्पैक्ट आएगा, या एक्चुअल लॉस इज 8%, यील्ड में इम्पैक्ट आएगा. सो मिक्स एंड यील्ड प्लेज दिस काइंड ऑफ रोल. Understood? So in material we are going to
deal with four variances: material cost variance, material quantity variance or material usage variance, material price variance, material mix variance, material yield variance. Done? Any question till here? Any question till here? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स, जिसको आज ये कॉस्टिंग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, उसके प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मूला सॉल्यूशन बिकम्स वेरी इजी. वो छोड़ दो मेरे पे, कैसे लर्न करना है उसका भी एक टेक्निकल फॉर्मूला लर्न करने का भी. बट कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सीधा अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. फिर वो वही स्टोरी, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड अगेन देयर विल बी 101 प्रॉब्लम. अरे ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खुद बहुत गंदा है. टू बी वेरी फ्रैंक, लेट मी टेल यू, द सिंपल टॉपिक टू स्टडी इन कॉस्टिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बट इफ यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मगअप करो और सॉल्व करो, तो लाइफ इज मिजरेबल. समझ ही नहीं पाओगे आप क्या कर रहे हैं आप लोग. डन? ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? आज ऑनलाइन फ्रेंड्स एकदम साइलेंट जोन में है, क्या बात है? नोबडी इज रेजिंग एनी क्वेश्चन. So no question. Chalo, let's move ahead. Understood, sir. See, now the same thing is explained in this material price variance, material usage variance. Further usage variance is bifurcated into mixed variance and yield variance. अभी प्राइस variance क्यों आता है? फॉर्मूलाज दे दिए. Difference between standard material cost and actual material cost is the price variance. ड्यू टू प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस मैंने मोबाइल का बैटरी, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल का बैटरी सेट किया था 5,000 रुपये में लूँगा, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दिया. बट एक्चुअल में क्या हो गया? 4,800 में आ गए. 200 रुपये बच गए तुम्हारे. एडवर्स है कि फेवरेबल है? फेवरेबल है. तो वो फेवरेबल वैरिएंस है. नाउ क्या रीज़न हो सकता है? गवर्नमेंट ने मे बी कमोडिटी कोई प्राइस कम हो गए, टैक्सेस का इम्पैक्ट भी हो सकता है. व्हाट्स एवर इट मे बी. अंडरस्टूड? फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या? केस स्टडीज सॉल्व करना है या प्रॉब्लम सॉल्व करना है? लेबर वैरिएंस में भी आएगा. I want to go for simple problems. केस लॉ स्टडी कर लेते हैं.
चलो सॉल्व केस 1, एक दो चार अंडरस्टैंडिंग को सॉल्व केसेस भी सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व फर्दर एलिमेंट्स आल्सो. उसके पहले हमने फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाया था ना. हमने एक लिस्ट बनाया था ना फॉर्मूला का. तो एक जगह पे फॉर्मूला मिल जाएगा सब लोगों को. See, note down these formulas. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखना है तो लिख भी सकते हो. कैसा है? या डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो. मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो निकाल के रखा तो भी चलेगा. मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मटेरियल कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट for actual output, obviously. Now how do we read this formula, how do we understand this formula? This is very very important, and that's what we are going to go by one element very proper way. Standard cost for actual output minus actual cost. दूसरा material price variance, standard price. See, always wherever you see हमने standard minus actual किया है. स्टैंडर्ड, एक चीज याद रखने का, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. प्राइस वैरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस. नाउ वैरिएंस हम किस चीज का कर रहे हैं? प्राइस का. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. पहले पांच ही फॉर्मूला लिख लो आज. डोंट राइट ऑल दिस फॉर्मूलाज, वो बाद में अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग. स्टेप बाय स्टेप चलना है. पहले हमको ये 4 फॉर्मूलाज ही लिख लेना है. राइट डाउन ओनली दिस 4 फॉर्मूलाज. मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. दूसरा मटेरियल प्राइस वैरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस, standard quantity for actual output minus actual quantity into standard price. Material mix variance, revised standard quantity minus actual quantity into standard price. And how revised standard quantity is worked out? Total of actual mix divided by total of standard mix multiplied by standard quantity of particular material. ये पूरे 5 फॉर्मूला एक जगह पे लिख लो. Please write down all these 5 formulas at one place.
ठीक है, लिख लिया? प्लीज लेट मी नो वंस यू हैव डन. Should we start? Note it down. Now let's solve this case study. See, now what is solved case number 1? In a particular situation, ASA Limited furnishes the following information. Standard quantity of material for producing 1 unit of finished product, P, is 5 kg. The standard price is rupees 6 per kg. During a particular period, 500 units of P were produced. Actual material consumed was 2700 kg at a cost of rupees 16,200. The owner requests his son Nikhil to calculate the direct material cost variance from the above data. ठीक है, तो बोला है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट है बेचारा, who is a cost accountant, uses the following formula and derives this. Now we will not apply his logic. हम लोग अच्छी तरह से प्रोफेशनल वे से सॉल्व करेंगे. हाँ भाई ना, क्या ना, लाइफ इज नॉट सो इजी. ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर वन टेबल. एक टेबल बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल्स. सो डिटेल्स स्टैंडर्ड. सी मैं ये तरीके से जाता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर कितना, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट. स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट पहले देख लो, बाद में बनाओ टेबल. एंड एक्चुअल फॉर 500 यूनिट्स है ना, 500 यूनिट्स. See, once we prepare this kind of table na, life becomes so easy to solve the standard costing formula. बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेट प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप. कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी इंफॉर्मेशन हो, कितना भी हॉच पॉच में दिया रहेगा, दिस स्टैंडर्ड कैन बिकम बजट, दिस स्टैंडर्ड कैन बिकम लास्ट ईयर एक्चुअल, वट एवर इट विल, नाम बदलेगा बस, थिंग्स विल रिमेन सेम. अभी मटेरियल एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल है ना, मटेरियल ए एंड बी है ना, एक ही है, ओनली वन मटेरियल इज देयर. सो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए देखो, सॉरी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. आई एम टेलिंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ सॉल्विंग. देयर आर 10 ways of solving the standard costing formulas problems. No need to prepare this table also. सीधा जाओ, फार्मूला लिखो, सॉल्व करो, खत्म. हो सकता है मल्टीपल वे से बनाओ, हो सकता है. बट ये टेबल अगर मैं बनाता हूँ, ये टेबल अगर मैं बनाता हूँ, तो लाइफ बिकम सो इजी एंड प्रॉब्लम में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है. वाई, दैट वी विल अंडरस्टैंड. मटेरियल हैज बीन गिवन,
मटेरियल क्वांटिटी कितना है स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट दे हैव गिवन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 5 kg सो मटेरियल पी है ना मटेरियल पी सो कितना kg लगता है 5 क्वांटिटी इन kg लिखो चलो इसमें भी करेक्शन 5 kg द स्टैंडर्ड प्राइस इज रुपीज फॉर 6 पर kg रेट कितना है 6 पर kg सो अमाउंट कितना आएगा 5 इंटू 6 सो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है जैसे हमने एग्जांपल लिया था मोबाइल का उसका प्लास्टिक यूज कितना का लगता है 100 ग्राम वैसे यहाँ पे 5 kg ऑफ मटेरियल लगता है एक मटेरियल बनाने के लिए स्टैंडर्ड है उसका रेट ₹6 है सो अमाउंट कम्स टू व्हाट 30 एग्रीड दूसरा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस्ड एक्चुअल है एक्चुअल कितना है एक्चुअल फॉर 500 यूनिट्स एग्रीड उसके लिए कितना मटेरियल है एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड वाज हाउ मच 2700 kg 2700 kg एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16,200 सो कॉस्ट कितना है अमाउंट दिया है 16,200 सो रेट हमको फाइंड आउट कर सकते हैं रेट कैसे अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ₹6 6 ही आया क्या नसीब अच्छा है ठीक है नाउ टेल मी ये इंफॉर्मेशन पुट अप कर लें और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या नहीं ना ये कंपेरेबल डेटा है ये पहले ये फिगर डालना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट स्टेप पुट दिस फिगर ये कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा ही इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड वे में रहेगा उठा के डालना है ओनली देयर विल बी मटेरियल पी क्यू आर 3 मटेरियल है तो 3 इंफॉर्मेशन है मटेरियल लेबर है तो लेबर का डालना है ठीक है विल गो स्टेप बाय स्टेप अभी मटेरियल की बात कर रहे हैं सो एक ही मटेरियल तो एक लाइन आइटम आएगा ऐसे 4 मटेरियल तो 4 लाइन आइटम आएगा एनी क्वेश्चन ऑनलाइन फ्रेंड एनी क्वेश्चन टिल हियर ऑनलाइन फ्रेंड एनी क्वेश्चन टिल हियर देखो मैं बोल रहा No, हूँ sir, आज no. अगर समझ में आया तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लाइफ टाइम में समझ में आएगा कोई कंसर्न नहीं रहेगा Understood, sir. ठीक है ओके अंडरस्टूड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन शुड वी शुड आस्क एट दिस स्टेज यहाँ पे लेके एक पॉज लेना है कि मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है क्या प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज हाउ मच 1 यूनिट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज हाउ मच 500 इज इट कंपेरेबल आंसर इज नो तो ये और एक टेबल बनाना पड़ेगा उसको नाम देना है यहाँ पे बोलना है स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल टेबल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन नाउ दिस इज स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल हम फिर से एक टेबल बनाते हैं वाई ये टेबल कब बनाना पड़ता है व्हेन ये अगर सेम है दोनों भी 500 क्वांटिटी का रहता प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज आल्सो 500 एक्चुअल प्रोडक्शन इज आल्सो 500 no need to prepare second table understood when second table is required when only when my standard is not equal to actual समझ में आया पक्का in this case we will require standard for actual production so standard for 500 units now actual for also 500 units now actual for 500 units कुछ चेंज नहीं होने वाला as it is लिख के आता लिख रहे हो ना लिखते जाओ अभी प्लीज कीप ऑन राइटिंग टिल हियर यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बोलो हो गया करके done see now what we have just plotted these figures and we have to take a pause and ask question to us खुद को ही पूछना है स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है क्या सेम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना है अगर सेम नहीं है तो वन मोर स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन करना है ना एक्चुअल प्रोडक्शन तो 500 का ही है 2700
नाउ व्हाट इज दिस, एक यूनिट बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, 5 kg, एग्रीड। एक बनाने के लिए, एक मटेरियल बनाने के लिए 5 kg लगता है, बराबर ना। फॉर वन स्टैंडर्ड यूनिट, फॉर वन स्टैंडर्ड यूनिट 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। सो 500 मेरा अगर स्टैंडर्ड यूनिट है, 500 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, सो मुझे कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, अंडरस्टूड। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए 5 kg लगता है, तो 500 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। सो कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है मुझे, 2500, 2500। डन, अंडरस्टूड हाउ वी डिराइव दिस। रेट को कुछ चेंज नहीं करना है, रेट स्टैंडर्ड का रेट स्टैंडर्ड लेके आना है, अमाउंट विल रिमेन एज इट इज, अमाउंट विल बी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट को चेंज नहीं करना है वहां पे, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर ऑनलाइन फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। हमने सेकंड टेबल Yes, क्यों sir. बनाया, हमने सेकंड में क्वेश्चन पूछता हूं, हमने ये सेकंड टेबल क्यों बनाया, ये कंपेरेबल नहीं है। इस लेवल पे अगर कंपेरेबल रहता तो आगे का टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, डोंट बनाओगे तो गलत भी हो जाएगा आप, क्योंकि आप कैलकुलेशन उतना करोगे। ये सेम अगर रहता है तो नो नीड ऑफ दिस टेबल, सिंस दिस आर नॉट सेम वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू, एक्चुअल को चेंज नहीं करना है। आप बोलोगे मैं एक्चुअल को बदल देता हूँ, एक्चुअल देखो एज इट इज लेके आए, इसका भी रेट चेंज नहीं करना है स्टैंडर्ड का, ओनली व्हाट वी आर डूइंग, एक क्वांटिटी बनाने के लिए स्टैंडर्ड के लिए 5 kg लगते हैं, तो 500 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए कितना। नाउ दिस इज एप्पल टू एप्पल, ये कंपेरेबल है, कंपेरेबल है कि नहीं। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, material cost variance, material cost variance. Now what is formula, standard cost for actual output minus actual cost for actual output, actual cost will always be actual output के लिए रहेगा, बराबर ना, माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्चुअल कॉस्ट लिखा तो भी सफिशिएंट है, बट एक्चुअल कॉस्ट इज ऑलवेज ऑफ एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है अभी, 15,000, बराबर ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो ना फॉर एक्चुअल आउटपुट 15,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 16,200। नाउ टेल मी वेदर दिस इज फेवरेबल और एडवर्स, वाई। मैंने कॉस्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझो, कॉस्ट मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 500 यूनिट कितना बोला था, 15,000 होना चाहिए, एक्चुअल में हुआ कितना, 16,200। सो योर एक्चुअल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज इंक्रीज्ड यू हैव टू से इट एज अ एडवर्स वैरिएंस और नेगेटिव वैरिएंस। इसको नाम अगर नहीं दिया तो ये 1200 निकाल के कोई मतलब नहीं है। डोंट गो ऑन दिस नेगेटिव पॉजिटिव साइन प्लीज, वो कैसे भी तरीके से हम लोग उल्टा पुल्टा फॉर्मूला लगा के वो नेगेटिव का पॉजिटिव साइन पे मत जाओ, गो बाय कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट सेज दैट द स्टैंडर्ड कॉस्ट वाज 15,000, एक्चुअली 16,200, so there is increase in cost. When there is increase in cost it is adverse. Clear, पक्का, sure, any question? I am going इतना स्लो जा रहा हूँ, इतना स्लो जा रहा हूँ कि मुझे खुद को लग रहा है कि मैं इतना स्लो क्यों जा रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम इतना ये सॉल्व करने के बाद आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो भी, इनफैक्ट सेल्स, प्रॉफिट वैरिएंस सब कवर कर सकता हूँ मैं इस एक फॉर्मूला के बेसिस पे, यू नो इट।
वी हैड डन आल्सो सेकंड ग्रुप में, क्या है ना, याद है थोड़ा थोड़ा, हाँ. नेक्स्ट कम्स टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस. नाउ दिस इज अ कॉस्ट वैरिएंस. अभी इसमें ये 1200 रुपया प्राइस की वजह से है या क्वांटिटी की वजह से, वो फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मटेरियल प्राइस? सी फॉर्मूला एकदम सिंपल है. क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? सी फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. व्हाट वी आर फाइंडिंग? प्राइस. सो स्टैंडर्ड प्राइस ऑलवेज, देखो स्टैंडर्ड से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, पहले तो वो लिख लेना है. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी. वाई एक्चुअल क्वांटिटी? अगर स्टैंडर्ड से लेंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा. फिर एक्चुअल वैरिएंस आया एक्चुअल क्वांटिटी कंजम्पशन की वजह से. प्राइस का इंपैक्ट फाइंड आउट करना है, हेंस इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है. नाउ व्हाट वाज द स्टैंडर्ड प्राइस? 6 रुपीज पर यूनिट, बराबर ना. देखो अब ये टेबल का यूज कर रहा है, ऊपर वाला टेबल भूल जाना है. फॉरगेट द ऊपर वाला टेबल, ये टेबल पे जाना है. 6 रुपीज वॉज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल हुआ रेट कितना था? एक्चुअल भी 6 है, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2700. सो इन दिस केस वैरिएंस कुछ आना ही नहीं चाहिए, नील वैरिएंस. नील वैरिएंस. वाई? 6 रुपए मैंने बजट भी 6 किया था, एक्चुअल में भी 6. देयर इज नो वैरिएंस ना, देयर इज नो वैरिएंस फॉर दिस. अंडरस्टूड? पक्का? मटेरियल प्राइस वैरिएंस के बाद ना मटेरियल यूसेज वैरिएंस. कॉस्ट हो गए रे बाबा. मटेरियल यूसेज या मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस. मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस actual quantity into standard price into standard price. Now standard quantity for actual output is how much? 2500 units, बराबर. standard quantity for actual output, standard for 500 units कितना है? 2500 quantity. agreed? ये टेबल में देखो standard is how much? 2500 minus actual quantity कितना है? 2700. actual quantity into standard rate is rupees 6. Is rupees 6. Now tell me whether this is adverse or favorable. Whether this is adverse or favorable. Adverse. Why? Because मैंने डिसाइड किया था 2700 क्वांटिटी का कंजम्पशन होने वाला है. लगा कितना? 2700. 2500 लगना चाहिए था ना. My standard was 2500. मैंने बजटिंग किया, स्टैंडर्ड सेट करते समय बोला 2500 का क्वांटिटी लगने वाला है. एक्चुअल में लगा कितना? 2700. ज़्यादा मटेरियल लग गया, ज़्यादा मटेरियल लग गया तो ज़्यादा कंजम्पशन हो गया. एडवर्स वैरिएंस. एडवर्स वैरिएंस. एडवर्स वैरिएंस. अभी यहाँ पे मिक्स वैरिएंस नहीं आ सकता क्योंकि एक ही मटेरियल है. आउटपुट भी कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आउटपुट ना यील्ड का है. सो मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी. नाउ ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं, हमने सॉल्व किया कि नहीं, ये इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते. योर प्राइस वैरिएंस प्लस क्वांटिटी वैरिएंस शुड मैच विथ योर कॉस्ट वैरिएंस. ये मैच हो गया. 10 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. 7 मार्क्स इमीडिएटली एग्जामिनर को लिख के देना है. यहाँ पे 7 मार्क्स दे दो चाहिए. Don't make any mistake in giving the marks. क्रॉस भी हो गए. हाँ हाँ 2 मार्क्स के लिए आ गया. 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे. अरे नाही स्टँडर्ड कॉस्टिंगला तुम्ही अंडर एस्टिमेट करू नका. वो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. वो इतना चौड़ा करके दे देंगे ना आपको, वहाँ से वो निकाल के टेबल बनाना है. वंस यू प्रिपेयर दिस 2 टेबल्स ना, मेरे हिसाब से आई ऑलवेज फॉलो दिस 2 टेबल फार्मूला कॉन्सेप्ट. क्योंकि यहाँ से यहीं पे हम ये डेरिवेशन हो गए ना, फार्मूला तो लर्न हो ही जाते हैं.
एंड फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी. प्राइस के लिए प्राइस माइनस प्राइस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. देखो फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी. यहाँ पे प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. टेबलवरून फॉर्म्युला पण होतं. मल्टिपल वेज आहे. आय हॅव अप्लाइड एन नंबर ऑफ वेज ऑफ टीचिंग द स्टँडर्ड कॉस्टिंग अँड आय रिअलाइज दिस. मला स्वतःला असं वाटलं हे जरा थोडंसं सोपं आणि बऱ्यापैकी अंडरस्टँडिंग लँग्वेजमध्ये जातं आहे. कारण इथे आपण हे बनवतोय, अरे कम्पेरेबल नाही आहे, मग त्याला पहिले कम्पेरेबल करूया. ठीक आहे, कम्पेरेबल झालं मग आता फॉर्म्युला टाकूया आणि फॉर्म्युलामधून फक्त याच टेबलमधले फिगर्स उचलायचे आहेत. सिंपल आहे. गो बाय मेकॅनिकल, गो बाय कॉन्सेप्च्युअल, गो बाय एनी वे, अंडरस्टँडिंग थिंग्स बिकम्स इझी ओव्हर हियर. मग ते आता इथे स्टँडर्ड प्राइस नाही घेतलाय. गुड क्वेश्चन. इफ वी टेक एक्चुअल प्राइस ओवर हियर, व्हाट विल हैपन? एक्चुअल प्राइस को यहाँ पे ले गए आ गए तो वो प्राइस वरायंस भी क्वांटिटी में घुस जाएगा. प्राइस वरायंस क्वांटिटी में घुस जाएगा ना. स्टैंडर्ड प्राइस क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्वांटिटी रेट कीपिंग स्टैग्नेंट, रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे रेट को मैंने चेंज नहीं किया. रेट अगर मैं रेट को भी चेंज कर दूंगा तो क्वांटिटी वरायंस में रेट वरायंस भी घुस जाएगा ना. यहाँ पे मुझे ओनली क्वांटिटी की वजह से कितना प्रॉब्लम. रेट को मैं स्टैंडर्ड रेट को फिक्स करूंगा. रेट मैंने कितना किया था, 5 रुपये, अभी भी 5 रुपये के हिसाब से लेता मैं, तो क्वांटिटी की वजह से कितना. अगर मैं रेट को भी चेंज कर दूँ, उधर एक्चुअल प्राइस डाल दूँ तो गया काम से. योर प्राइस वरायंस इज सिटिंग इनटू योर क्वांटिटी वरायंस. सो ये तो पूरा ट्रेजेडी हो जाएगा. फिर क्वांटिटी फाइंड आउट करायचं आहे ना, तो क्वांटिटीमुळे किती झालं, मग रेट फिक्स ठेवावं लागेल ना. दोन्ही कम्पॅरेटिव्ह फिगरला रेट फिक्स ठेवावं लागेल. येस ऑर नो? रेट जर चेंज केला तर झाला, क्वांटिटीमध्ये प्राइस वरायंस बन. सो इट विल नॉट मैच ना. देखो चलो करते इसको. अगर हम लोग एक्चुअल प्राइस से करते हैं, एक्चुअल प्राइस से करते हैं तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे चलो बाय मिस्टेक अभी क्या हो गया, दोनों सेम है इसलिए सेम ही आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर 6 रुपया 10 पैसा रहता है और इसको हम लोग 6 रुपये 10 पैसे से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं. किधर है? मैच नहीं हो रहा है ना ये. मतलब इसमें प्राइस वरायंस भी घुस गया क्वांटिटी वरायंस में. एग्रीड और नॉट? चलो गुड क्वेश्चन. ये मैच होना ही चाहिए. मैच नहीं होता है तो गए. जो भी 1, 2, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोलना है, हम स्टार्टिंग विथ 90 और 5 मार्क्स के लिए तो मेरा 95 में से मुझे 40 लाना है. अभी ये सिच्युएशन हो जाएगा. आलं ना लक्षात? हे जर टॅली नाही झालं, समजा 10 मार्क्सला हा क्वेश्चन होता आणि हा टॅली नाही झाला तर गेले, टाइम पण गेला आणि मार्क्स पासिंगमधले 100 नाही राहिले, आता 90च झाले. 90 मधून तुम्हाला 40 आणायचे आहेत. आता हे टॅली झाले तर ठीक आहे. 100 स्टिल रिमेन्स 10. आउट ऑफ 100 आय हॅव टू ब्रिंग 40. ठीक आहे. एनिवे नॉट एन इश्यू. ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? ऑनलाइन फ्रेंड्स? No, sir. चलो नाउ चल सॉल्व करना है. इलिस्ट्रेशन नंबर 2. आपको ज़्यादा मेहनत, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाना है मुझे. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना 2-4 इजी प्रॉब्लम में, तो थिंग्स बिकम. सपोज दैट मिस्टर अरुण सिंह जी, द ओनर ऑफ लोटस लिमिटेड, is worried about variance in direct material cost in his fountain pen manufacturing unit, Lotus Limited. In the manufacturing unit, he has adopted standard costing system
and for particular month he extract following information. Standard देखो, material for 70 kg finished product, 100 kg material लगता है. Price of material 1 per kg. Output 2,10,000 kg. Material used 2,80,000. Cost of material 2,50,000. Mr. Arun asked his cost accountant to calculate direct material variance and report the same to him. ठीक है, जाना है, सॉल्व करना है. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. बारिश आ रहा है क्या? नहीं ना. काय झालं? हाच क्वेश्चन आला होता एक्झामला. हां, हा होता का? सॉल्व केला होता. अच्छा, रीड कर लिया. चलो, फर्स्ट थिंग इज व्हाट? प्रिपेयर दिस टेबल. चलो, should we start? Stick. Now what they are saying, standard material for 70 kg of finished product. So material standard for 70 kg. बराबर? For 70 kg. Standard for 70 kg. कितना लगता है? Raw material 100 kg. Price per kg is ₹1. Amount will be 100. Now actual is for how much? Actual output 2,10,000. Actual output 2,10,000 kg ना. 2 लाख एक्चुअल आउटपुट 2,10,000. स्टेप बाय स्टेप चलना है. जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसे पुटअप करना है. मटेरियल कितना लगा? 2,80,000 का. एंड अमाउंट इज हाउ मच? टोटल लेवल पे 2,52,000. रेट डिराइव कर सकते हैं. 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 90 पैसे. नाउ इज इट कंपेरेबल? पहला क्वेश्चन. ये प्लॉट करने के बाद खुद को क्वेश्चन पूछना है. इज इट कंपेरेबल? इज इट कंपेरेबल? कैन वी गो डायरेक्टली? पक्का ना? ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर टेबल. We have to prepare one more table. Standard for 2,10,000 kg. बराबर? And actual is also for 2,10,000 kg. Actual for 2,10,000 kg. ठीक है. Now actual 2,10,000 actual में कुछ चेंज नहीं होने वाला भाई साहब. बराबर ना? एक्चुअल रिमेन एज इट इज, कोई चेंज नहीं. स्टैंडर्ड का भी रेट कुछ बदलने वाला नहीं है. स्टैंडर्ड का रेट विल रिमेन एज इट इज. एग्रीड और नॉट? स्टैंडर्ड का फॉर्मूला भी कैसा है? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट. फॉर्मूला भी वैसा रहेगा. अभी मैंने एक्सेल में डाल के रखा है, आप करो मत. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी. सो 70 kg के 70 के लिए 70 प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है? 100 kg RM. 70 आउटपुट के लिए 100 kg ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड. बराबर? यस और नो? सो अगर मेरा 2,10,000 आउटपुट है,
2,10,000 आउटपुट है, सो कितना मटेरियल इनपुट का लगेगा, बराबर है. सो 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70. सो कितना मटेरियल लगने वाला है? सो 3 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल मेरा स्टैंडर्ड लगने वाला है. अमाउंट इज 3 लाख रुपया. डन? पक्का? श्योर? नो क्वेश्चन? ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन? Understood, sir. नाउ ये दोनों कंपेरेबल हो गए. स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कंपेरेबल आउटपुट. एग्रीड और नॉट? सो लेट्स डिराइव द मटेरियल कॉस्ट वरायंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हाउ मच? 3 लाख रुपया, बराबर. अब यही टेबल, सेकेंड टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. एडवर्स है कि फेवरेबल है? वाई फेवरेबल? स्टैंडर्ड मैंने बोला था 3 लाख रुपया खर्चा आएगा, एक्चुअल में कितना आया? 3,52,000. सो दिस इज फेवरेबल. दिस इज फेवरेबल. नाउ लेट्स गो एंड फाइंड आउट प्राइस वरायंस. प्राइस वरायंस. सो स्टैंडर्ड प्राइस वाज हाउ मच? 1 रुपी. एक्चुअल प्राइस इज माइनस, सॉरी 90 पैसे. 90 पैसे है ना? ये 90 के नहीं और कुछ है? 90 पैसे है. सो 1 रुपीज इज द स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल रेट इज 90 पैसे इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,80,000. 2,80,000. 28,000 क्या है ये? एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है कि फेवरेबल है? वाई फेवरेबल? बिकॉज मैंने सिर्फ फेवरेबल है। डिसाइड किया था 1 रुपए से खरीदूंगा, मिला कितने में? 90 पैसे में. पैसा ही बच गया ना मेरा, 10 पैसा. फेवरेबल है ना, एडवर्स नाही आहे ना. अरे तुम्ही कपडे आणायला गेले, 1000 रुपयाचे कपडे तुम्हाला 900 रुपयात मिळाले, तुम्ही काय म्हणाल? एडवर्स आहे का? नाही ना. सो एक मटेरियल 1 रुपयाला 1 kg मिळणार होतं, 90 पैसे मिळाले. याला 2 दे माझ्या. वाई यू आर सो कन्फ्युज्ड? दे 2 दे, जोरात दे, असं दणका दे त्याचा. फेवरेबल. ओके. नाउ क्वांटिटी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है? 3 लाख क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 इंटू एक्चुअल प्राइस इज 90 पैसे. एक्चुअली का स्टैंडर्ड है? स्टँडर्ड प्राइस आहे रे. एक्झाम्पल घेता घेता ते हे करून टाकलं इंटू स्टँडर्ड प्राइस. नाउ टेल मी वेदर इट विल बी एडवर्स और फेवरेबल. वाई? बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड मुझे लगा था 3 लाख क्वांटिटी कंज्यूम होगा, बट एक्चुअल में कितना क्वांटिटी कंज्यूम होगा? 2 लाख. सो इट इज विल बी फेवरेबल. It will be favorable. Now go and check with this element. Price variance plus quantity variance, it दोनों मैच हो रहा है. मैटर क्लोज. 4 मार्क्स लिख के देने का. खत्म. अगर ये सब 2 चीज़ें 2-3 फार्मूला समझ में आ गए ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 60-70-80% मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा. तो थोड़ा बहुत यील्ड का, थोड़ा बहुत वो फिक्स्ड ओवरहेड्स का थोड़ा सा अलग अलग एप्लीकेशन है. अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली मुझे इनकम में उल्टा सोचना है, एक्सपेंसेस में अभी सीधा सोच रहा हूँ. बस दैट्स इट. बहुत सारे लोग बोलते बहुत डिफिकल्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
but I take it always as a challenge to make it as simple as possible. फेवरेबल आणि ॲडव्हर्स का नाही सांगतायत पण मग मित्र कुठे आहे तुझा मित्र कुठे आहे काय ऑनलाईन आहे का ओके तो इनके फार्मूला के हिसाब से आएंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस इंटू ए क्यू ए पी ए क्यू एस पी कुछ समझ में नहीं आता मेरे को तो नहीं समझ में आता आपको समझ में आता होगा तो मालूम नहीं ये देखो ए क्यू ए पी ए क्यू एस पी मला नाही कळत झेपतच नाही मला हे Obviously yes. मग काय असं कसं काय कुछ भी फॉर्म्युला तर करावं लागेल ना राजे Now let's solve case number 4. Solve case number 4, page number 489. Old page क्या है? And let me tell you, this is our last problem for today's. 487 है क्या? Old book. ठीक है. चलो. क्या दिया है? Suppose that in a factory chemical A, B, C are mixed in a manufacture chemical D. D बनाने के लिए A, B, C का consumption होता है. So raw material is A, B, C, output is D. After elaborate discussion with various stakeholders, following standards are set. Standard material cost for 100 kg of output of D. Chemical A, B and C. For a particular period, 500 kg of chemical D was produced with the mix of chemical A, B and C. चलो हमको अभी पहले तो हम लोग पहले जाके ये टेबल बनाएंगे today's last problem और वो भी कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस बाद में देखेंगे पहले मटेरियल ये तीन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए ठीक है सी नाउ व्हाट दे हैव गिवन अंडरस्टैंड various stakeholders they have standard material cost for 100 kg output for standard is for how much standard for 100 kg of output and actual for actually यहाँ पे ठीक है बाद में भी प्लॉट करते हैं केमिकल ए सो मटेरियल ए बी एंड सी मटेरियल ए बी एंड सी ए कितना लगता है 30 kg रेट इज हाउ मच 4 रुपीज पर kg अमाउंट कितना होगा 30 इंटू 4 मटेरियल बी 40 इंटू 5 40 इंटू 5 एंड मटेरियल सी कितना है 80 इंटू रेट है 6 डन
रेट का टोटल मत लो भाई, नहीं तो रेट का भी टोटल ले लोगे। ठीक है, नाउ एक्चुअली इज फॉर हाउ मच? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 500 kg ऑफ केमिकल डी, सो एक्चुअल फॉर 500 kg आउटपुट। कितना मटेरियल लगा देखो, मटेरियल केमिकल ए 140 kg बराबर, 140 kg। अमाउंट कितना दिया है 588। केमिकल बी 220 kg, अमाउंट कितना है 1056। एंड केमिकल सी 440 kg, अमाउंट इज 2860। नाउ वी हैव टू डिराइव द रेट डिराइव कर सकते हैं। 588 डिवाइडेड बाय 140, 1056 डिवाइडेड बाय 220 एंड 2860 डिवाइडेड बाय 440। सो इज दिस कंपेरेबल डेटा? कंपेरेबल है क्या? नहीं है ना। वन मोर टेबल विल हैव टू मैन्युफैक्चर, सॉरी वी हैव टू प्रिपेयर one more table we will have to prepare. Standard for 500 kg output and actual is directly given as it is. चलो, शुड वी स्टार्ट? देखो अभी मटेरियल ए के लिए रेट भी एज इट इज लेना है, रेट को चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज द रेट, रेट चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के, स्टैंडर्ड के रेट चेंज नहीं करना है, 4 5 6 ही रखना है। नाउ ओनली वी हैव टू पुट द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड। डन? पक्का? चलो नाउ सी, फॉर 100 kg ए के लिए हम लोग वर्कआउट करें। फॉर 100 kg ऑफ आउटपुट, रॉ मटेरियल इनपुट कितना है? इनपुट इज 30 kg। फॉर 500 kg ऑफ आउटपुट हाउ मच? सो 500 इंटू 150, 150 इंटू 4 600 हो जाता है। ठीक है, डन। दूसरा 100 kg के लिए बी का, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बी। 100 kg के लिए कितना है? 40। तो 500 के लिए कितना? क्या झालं? मिसिंग 200, 200 इंटू 5 1000। एंड लास्ट नाउ सी के लिए बना रहा हूं। सी के लिए 100 kg ऑफ आउटपुट के लिए कितना लगता है? 80, बराबर ना? एम आई गोइंग प्रॉपर वे? करेक्ट करतो क्या? चुकीचं नाही करत ना काही? 500 के लिए कितना? 400। डन। अभी ये टेबल हो गया, कंपैरेटिव हो गया। अभी ऊपर वाला टेबल भूल जाना है, फॉरगेट अबाउट ऊपर वाला टेबल। शुड वी स्टार्ट नाउ? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तीन अलग अलग मटेरियल है। अभी तीन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग एलिमेंट।
सो ए के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हाउ मच 600 बरोबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट 588 ॲडवर्स आहे की फेवरेबल आहे सांगा फेवरेबल मटेरियल बी 1000 माइनस 1056 ये एडवर्स है ये आई एम टेकिंग दिस वन दिस माइनस दिस सी वाला 2400 माइनस 2860 एडवर्स सो एट टोटल लेवल एडवर्स टोटल लेवल पे भी एडवर्स है देखो 504 डन आलाय का लक्षात पक्का नाउ विल मैं इसको हाइड करता हूं 2 मिनट के लिए so that everything is on one table hide material price variance what is formula A B and C A के लिए standard price is how much 4 actual price is 4.2 बघा 4 and 4.2 multiplied by actual quantity is how much 140 एक मटेरियल पकड़ायचं आपण सी वाला इसको ही पकड़ के सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी नाउ व्हाट इज द वरायन्स एडवर्स का फेवरेबल एडवर्स वा मी 4 रुपये म्हटलं 4 रुपयात घेईल पण मिळालं किती 4 रुपये 20 पैसे सो एक्स्ट्रा पेमेंट करायला लागला एडवर्स फास्ट एम आई गोइंग फास्ट नाउ नहीं मटेरियल बी standard rate is 5 actual is 4.8 into actual quantity 220 favorable and last C standard rate is 6 minus actual rate 6.5 into actual quantity 440 adverse so total level adverse done material price variance online friends understood Yes, sir. and last now we will go for material quantity variance what is quantity standard quantity कितना है A B C A B and C standard quantity is how much 150 minus actual quantity 140 into standard rate 4 favorable B 200 minus 220 into 5 adverse C 400 स्पीड अप आहे का माझं minus 440 into 6 adverse total adverse total adverse अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ अभी जाके एग्जामिनर को पूछना है कि मेरे को पूरा मार्क्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमको पूरा मार्क्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है एग्जामिनर को जाके वो चेक करना है ठीक है मटेरियल ए प्राइस के लिए दिस प्लस मैच हो गया
मैच हो गए. डन. पक्का. ओके. सो 2 मिनट पहले. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. गुड नाइट. ऑनलाइन फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेरी है तो आई एम अवेलेबल. प्लीज आस्क द क्वेश्चन. लोग इतने फास्ट है, देखो फटाफट फटाफट बंद भी कर दिया ऑनलाइन वालों ने. कुछ क्वेरी है नहीं है, कुछ लेने देना नहीं. खटाक. सर क्वेरी यील्ड के टाइम पे आता है सर. क्या? सर क्वेरी यील्ड के टाइम पे आता है, उधर पूरा लॉजिक निकल जाता है. सो इट्स गुड ना. अंडरस्टैंडिंग. यू आर अंडरस्टैंडिंग देन. यस सर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंजॉय करते हो कि नहीं मेरे साथ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का या मार्जिनल कॉस्टिंग. देखो मेरा तकनीक थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाता है व्हेन आई एंटर इनटू बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड. वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में एक चालू रहता है, मेथड है वो. इसमें यहाँ पे एक दिमाग वाला काम है, आपको दिमाग कर लगाने का है. मजा आता है कि नहीं आता है ऑनलाइन फ्रेंड्स? यस सर, यील्ड का अगर आंसर मैच कर गए तो बहुत मजा आता है. ठीक है, चलो बाय बाय. चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंप्लीट कर देंगे. एक दो 2 मोर लेक्चर्स.